નમસ્કાર, હું આસ્થા તિવારી જનાદેશ ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। સુરતમાં આજે 21 ઓક્ટોબર એટલે કે પોલીસ શહીદ સંભાળના દિવસ છે, ત્યારે સુરતમાં પોલીસ શહીદ સંભાળના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। સુરત પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પોલીસ શહીદ સંભાળના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી। આ પ્રસંગે રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ રહ્યા હાજર। રાજ્ય ગૃહમંત્રીએ શહાદત પામનાર 217 જેટલા પોલીસ જવાનોને આપી શ્રદ્ધાંજલિ। તેમના પરિવારજનો માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું અને તેમને આ તકલીફમાં શક્તિ આપે તેવું હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું। સાથે સાથે જ રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીનું મોટું નિવેદન પણ અપાયું હતું। સુરત પોલીસ જે પ્રકારે ગુજરાત પોલીસ ડ્રગ્સની સામે અભિયાન નહીં પરંતુ એક જંગ લડી રહી છે। આ જંગને આગળ વધારતા સુરત પોલીસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કાલે 2100 ગ્રામ જેટલું ડ્રગ્સ પકડવામાં એક મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે। સુરત જિલ્લામાંથી આ ડ્રગ્સ પકડ્યા બાદ એની ટ્રેલ એટલે કે ભરૂચ જિલ્લા સુધી પોલીસનું આ ઓપરેશન આગળ વધ્યું છે અને સુરત પોલીસ દ્વારા આ કામગીરી ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક કાલે પાર પાડવામાં આવી છે। છેલ્લા અનેક દિવસોથી સુરત પોલીસ દ્વારા વોચ ગોઠવવામાં આવેલી હતી અને એના અંતે અનેક યુવાનોનું જીવન બચાવવાનું કામ સુરત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। હું સુરત પોલીસને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। આ જ પ્રકારે સમાજના સહયોગથી આપણા રાજ્યમાં આપણે ડ્રગ્સ પકડવાનું કામ કરીએ છીએ અને આ ડ્રગ્સ પકડવા માટે પોલીસ દ્વારા રાત દિવસ એક કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ ડ્રગ્સના આખાને આખા કાર્ટલો પકડવામાં આપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે। ફરી એકવાર સુરત પોલીસને આ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। પોલીસ શહીદ સંભાળના દિવસના દિવસે આજે સુરત શહેર ખાતેથી દેશભરના પોલીસ જવાનો જે રાષ્ટ્રની વિવિધ રાજ્યોની પોલીસમાં ફરજ બજાવી રહ્યા હતા અને નાગરિકોની સુરક્ષાના કાજે 217 જેટલા પોલીસના વિવિધ અધિકારી જવાનો આ વર્ષે જે શહીદ થયા છે તેમને સલામી આપી છે। રાજ્યના સૌ નાગરિકો વતી સૌ પોલીસ જવાનોને અને એમના પરિવારજનોને પ્રાર્થના સાથે સલામી આપીને સત નમન કર્યું છે। પોલીસ ફોર્સે સુરક્ષા જોડે જોડે સામાજિક સાથે સાથે દેશમાં પડતી કોઈ બી મુશ્કેલીઓમાં પહેલી પહોંચનાર ફ્રન્ટ વોરિયર ફોર્સ તરીકે કામ કરતી ફોર્સ છે। હું રાજ્ય પોલીસ પરિવારના સૌ સાથીઓને એમની આ સેવા બદલ રાજ્યના સૌ નાગરિકો વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને મારા રાજ્યના સૌ નાગરિકો વતી સૌ શહીદોને હું સલામી આપું છું। એમના પરિવારજનો માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી એમને આ તકલીફ સહેવાની
હિંમત આપે તે માટે સૌ વતી હું પ્રાર્થના કરું છું. સુરતના ઓલપાડમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો. વરસાદને કારણે ડાંગરના પાકને નુકસાન થયું હતું. ખેતરોમાં પવન સાથે વરસાદ વરસતા પાકને નુકસાન પહોંચવા પામ્યું હતું. ડાંગરનો પાક જમીનદોસ્ત થયો હતો. નુકસાનીનો સર્વે કરી સહાય કરવા ખેડૂત આગેવાનોને અપીલ કરાઈ હતી. ખેડૂત આગેવાન જયેશ પટેલે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 1,80,000 હેક્ટર પાક જોવા મળ્યો હતો. રાજ્ય સરકાર સર્વે કરી ખેડૂતોની વહારે આવે તેવી ખેડૂત આગેવાન જયેશ પટેલે રજૂઆત કરી છે. જયેશ પટેલ, ખેડૂત આગેવાન. સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ડાંગર એ મુખ્ય પાક છે ખેડૂતોનો. લગભગ 1,80,000 હેક્ટરમાં ડાંગરના પાક ખેડૂતો કરતા આવેલા છે. સામાન્ય તમે જો દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડ, નવસારી અને સુરતના જે કાંઠા વિસ્તાર હોય અને ખાસ કરીને જંગલ વિસ્તાર તમે જો તો માંડવી, તાપીમાં ખાસ કરીને તમે જો વિહારા, ઉચ્છલ અને ડાંગ સુધી વિશેષ પ્રમાણમાં ડાંગરની ખેતી થતી હોય છે. આ વર્ષે તમે જો તો સતત 4 મહિનાથી સતત વરસાદ છે અને આ વરસાદને કારણે ડાંગરના પાકમાં રોગ જીવાતનું પણ પ્રમાણ વધુ છે. અને સામાન્ય રીતે 10મી ઓક્ટોબરે જ્યારે ખરીફ ડાંગરની કાપણીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે દક્ષિણ ગુજરાતમાં, અને જે રીતે છેલ્લા 10-12 દિવસથી સતત વરસાદ થઈ રહ્યો છે એને કારણે ડાંગરના પાકને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. રાજ્ય સરકાર ખાસ કરીને ખેતીવાડી અધિકારીઓ પણ સર્વે કરીને તાત્કાલિક આ ખેડૂતોની વહારે આવે એવી અમે અપીલ કરી રહ્યા છે. ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં આવ્યા છે અને ખાસ કરીને કાપણીના સમયે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં આવ્યા છે, ત્યારે સરકાર મદદ કરે એવી ખેડૂતો ઈચ્છા રાખી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રનું અગ્રીમ ગણાતું ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીની મબલક આવક નોંધાઈ છે. યાર્ડમાં અંદાજે 1 લાખથી વધુ મગફળીની ગુણની આવક નોંધાઈ છે. હરાજીમાં રેગ્યુલર મગફળીના 20 કિલોના ભાવે 900 થી ₹1,250 સુધીના બોલાયા હતા, જ્યારે 66 નંબર મગફળીના 20 કિલો ભાવના 1,600 થી 2,200 સુધી બોલાયા હતા. ગુજરાતનું અગ્રીમ અને મગફળીનું હબ ગણાતા ગોંડલ માર્કેટયાર્ડની અંદર રાત્રિના મગફળીની આવક શરૂ કરવામાં આવેલી હતી. અંદાજિત 1 લાખથી વધારે મગફળીની આવક થયેલ છે. 20 કિલોનો ભાવ જોવા જઈએ તો 800થી માંડીને 1,250 સુધીના ભાવ છે, જેમાં બિંદુ મગફળીના 1,500થી માંડીને 2,300 સુધીના ભાવ છે. ખાસ કરીને વરસાદી વાતાવરણ હોય, હાલ જે મગફળીની આવક થાય છે એમાં 80% જેવો માલ બહુ હવાવાળો આવે છે અને ખેડૂતો વગર સૂકવીને લાવે છે, જેથીને ભાવ ખેડૂતોને ઓછા મળે છે. તો ખાસ કરીને ખેડૂત ભાઈઓને પણ વિનંતી છે કે મગફળી બને ત્યાં સુધી સૂકવીને લાવે તો સારા ભાવ મળે. અને હાલ જગ્યા ન હોવાથી અને વરસાદી વાતાવરણ હોવાથી મગફળીની આવક સદંતર બંધ કરવામાં આવેલ છે, જેની દરેક ખેડૂત ભાઈઓ તથા વાહન માલિકોએ ખાસ નોંધ લેવી. ભરૂચ તાલુકાના શુક્લ તીર્થધામમાં આગામી કારતકના દિવસે મેળા દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં આવશે. પછી રાજકોટ અગ્નિકાંડ અંતર્ગત સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર એટલે કે SOPનું જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા પાલન કરાવવામાં પણ આવશે. ભરૂચ તાલુકાના શુક્લ તીર્થધામમાં આગામી કારતકના દિવસે મેળા દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં આવશે. પછી રાજકોટ અગ્નિકાંડ અંતર્ગત સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર એટલે કે SOPનું જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા પાલન કરાવવામાં પણ આવશે. મારું નામ ગુરુદત્ત ચૌહાણ. હું આજે સુકલથી ગ્રામ પંચાયતની કાર્તિકી પૂનમના મેળા માટે હરાજીમાં ભાગ લેવા આવ્યો હતો અને મેં કિંમત બોલવાની 23,75,000માં રાખ્યું છે. હવે અમારે સરકારશ્રી તરફથી, ગ્રામ પંચાયત તરફથી સાથ સહકાર મળે, મેળો સારો જાય એવી અમે બધા પાસે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. વ્યારાથી સોનગઢ વાયા આગાસવણની બસને રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ કુંવરજીભાઈ હળપતિએ લીલી ઝંડી આપી. સોનગઢના આગાસવણ ગામ ખાતે ગતરોજ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી કુંવરજીભાઈ હળપતિના હસ્તે નવી લોકલ બસને રૂટ ઉપર લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવી. કોરોના પહેલા પણ આ બસ શરૂ હતી, પરંતુ ત્યારબાદ ફરી મુસાફરોની માંગ થતા આ બસને ફરીથી કાયમી ધોરણે ચાલુ કરવામાં આવી છે. બસના નવા રૂટ શરૂ કરવાના પ્રસંગે મંત્રી કુંવરજીભાઈ હળપતિએ જણાવ્યું હતું કે આ સલાવા ખીકાકુઈ આજે સોનગઢ તાલુકાના અગાસવણ ગામે સાંજના સમયે 5:30 વાગે
એક કોરોનાના કાળમાં જે ચાલતો રૂટ હતો બસ, એ બસ બંધ હતી અને આ રજૂઆત ગામના બધા જ લોકોએ કરી અને એના કારણે સોનગઢથી આસલવા, કીકાકોઈ, માંદણ અને અગાસવણ થઈને વ્યારા સવારે જાય અને રિટર્ન ફરી પાછી સાંજે 5:30 વાગે અગાસવણ મુકામે આવે, એ બસનું મારા દ્વારા લીલી ઝંડી આપીને અહીંથી હજારો વિદ્યાર્થીઓનો લાભ મળશે. કેમ કે કેટલાય વિદ્યાર્થીઓ અટવાઈ જતા હતા, એ સમયસર બસ ચાલશે તો ચોક્કસ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓને લાભ થશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીની મુલાકાતે હતા. ગઈકાલે વારાણસીમાં આંખની હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કર્યા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જનસભા સંબોધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે હવે કાશીની ઓળખ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓને કારણે પણ થઈ છે. અગાઉ કાશી માત્ર ધર્મની રાજધાની તરીકે જણાતું હતું. પૂર્વાંચલમાં સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં ઘણો સુધારો થયો છે. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે કાશી પ્રાચીન સમયથી ધર્મ અને સંસ્કૃતિની રાજધાની તરીકે જાણીતું હતું. હવે કાશી પૂર્વાંચલમાં એક મોટા આરોગ્ય કેન્દ્ર તરીકે પણ પ્રખ્યાત થયું છે. તેમણે કહ્યું કે આ પવિત્ર મહિનામાં કાશી આવવું એ પુણ્યનો અનુભવ કરવાનો અવસર છે. हेल्थ केयर के प्रति पुरानी सोच और अप्रोच को बदल दिया है. आज आरोग्य से जुड़ी भारत की रणनीति के 5 स्तंभ है. पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी होने से पहले का बचाव. दूसरा, समय पर बीमारी की जांच. तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं. चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना. और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार. साथियों, किसी भी व्यक्ति को बीमारी से बचाना भारत की स्वास्थ्य नीति की बड़ी प्राथमिकता है. स्वास्थ्य क्षेत्र का पहला स्तंभ है. बीमारी गरीब को और गरीब बनाती है. आप जानते हैं, बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. एक गंभीर बीमारी इन्हें फिर से गरीबी के दलदल में धकेल सकती है. इसलिए बीमारी हो ही नहीं, इस पर सरकार बहुत जोर दे रही है. इसलिए हमारी सरकार साफ सफाई, योग, आयुर्वेद, पोषक खान पान, इन सारे विषयों पर खास ध्यान दे रही है. हम टीकाकरण अभियान को भी ज्यादा से ज्यादा घरों तक ले गए हैं. 10 साल पहले तक ये स्थिति थी कि देश में टीकाकरण का कवरेज 60% के आसपास ही थी. यानी करोड़ों बच्चे तो टीकाकरण के दायरे में ही नहीं थे. और टीकाकरण का यह दायरा हर साल सिर्फ 1-1.5% की गति से बढ़ रहा था. अगर ऐसे ही चलता रहता तो हर क्षेत्र को, हर बच्चे को टीकाकरण के दायरे में लाने में 40-50 साल और लग जाते. आप कल्पना कर सकते हैं कि ये देश की नई पीढ़ी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था. इसलिए सरकार बनने के बाद हमने बहुत ही बड़ी प्राथमिकता के बच्चों के टीकाकरण को दी, उसकी कवरेज बढ़ाने को दी. हमने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया. हमने एक साथ कई सारे मंत्रालय को इस काम में लगाया. नतीजा ये आया कि न केवल टीकाकरण कवरेज की दर बढ़ी, बल्कि ऐसी करोड़ों गर्भवती महिलाओं का, करोड़ों बच्चों का टीकाकरण हुआ जो पहले इससे छूट जाते थे. भारत ने टीकाकरण पर जोर दिया. उसका बहुत बड़ा फायदा हमें कोरोना के दौरान मिला. आज पूरा देश में टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है. से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है. अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है. बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए
विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में बीते एक दशक में हुए हैं। आज बनारस में कैंसर के इलाज के लिए भी आधुनिक अस्पताल है। पहले जिन मरीजों को दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता था, आज वे यहीं अच्छा इलाज करा पा रहे हैं। आज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों से भी हजारों लोग यहां उपचार के लिए आते हैं। हमारी मोक्षदायिनी काशी अब नई ऊर्जा के साथ, नए संसाधनों के साथ नव जीवनदायिनी भी बन रही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं अभी इस नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। ये अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा। यहां बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है। ये नेत्र अस्पताल यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर लेकर आया है। यहां मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटर्नशिप कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। सपोर्ट स्टाफ के तौर पर भी यहां के अनेकों लोगों को काम मिलेगा। अपनी काशी बहुरंगी सांस्कृतिक नगरी है। यहां भगवान शंकर का पावन ज्योतिर्लिंग है, मणिकर्णिका जैसा मोक्ष तीर्थ है, यहां सारनाथ जैसा ज्ञान स्थल है। दशकों दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है। वरना काशी को तो जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना पे भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी वर्षों से लटकी रही थी। यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे। मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है
जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। बनारस का सांसद होने के नाते भी जब यहां की प्रगति देखता हूं तो संतोष होता है। काशी को शहरी विकास की मॉडल सिटी बनाने का सपना तो हम सभी ने साथ मिलकर देखा है। एक ऐसा शहर जहां विकास भी हो रहा है और विरासत भी संरक्षित हो रही है। आज काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के भव्य और दिव्य धाम से होती है। आज काशी की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से होती है। आज काशी की पहचान रिंग रोड और गंजारी स्टेडियम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है। आज काशी में रोपवे जैसी आधुनिक सुविधा बन रही है। ये चौड़े रास्ते, ये गलियां, ये गंगा जी के सुंदर घाट आज सबका मन मोह रहे हैं। साथियों, हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारी काशी, हमारा पूर्वांचल व्यापार कारोबार का और बड़ा केंद्र बने। इसलिए कुछ दिन पहले ही सरकार ने गंगा जी पर एक नए रेल रोड ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी है। जॉन राजघाट का पुल होना, एकरे पास में एक थे भव्य पुल और बने जाता। एकरे नीचे कई थे ट्रेन चले और ऊपर 6 लेन का हाईवे भी बनी। एकर लाभ बनारस और चंदौली के लाखन लोगन के मिले। રોહિણીમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ બાદ દિલ્હીના પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાએ ભાજપા પર પ્રહાર કર્યા। કહ્યું, જો કાયદો અને વ્યવસ્થા નહીં જળવાય તો રાજીનામું આપો। आज सुबह त्योहारों से पहले दिल्ली में एक स्कूल के पास एक बम धमाका हुआ। रोहिणी इलाके में हुआ ये बम धमाका बहुत चिंता करने वाला है कि त्योहारों से पहले, जब त्योहारों के अवसर पर लोग जगह जगह असेंबल हो रहे हैं, मार्केट्स में भीड़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दिवाली मिलन चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, वैसे भी मार्केट्स में लगातार भीड़ बढ़ रही है और बढ़ेगी। वैसे में दिल्ली में एक धमाका होना ये बताता है कि हमारी केंद्र सरकार किस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुई है। उनको दिल्ली वालों की कोई चिंता नहीं है, कतई चिंता नहीं है। उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था की, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की, दिल्ली में इंटेलिजेंस की उनको कोई चिंता नहीं है। पूरी तरह से ये केंद्र सरकार का फेलियर है। ये बताता है आज का ये धमाका केंद्र सरकार की पूरी लापरवाही है दिल्ली के लोगों के प्रति। ये जो धमाका हुआ इससे स्कूल की दीवार गिर गई, उसको नुकसान हो गया। मैं शुक्रगुजार हूं भगवान का कि आज छुट्टी का दिन था। अगर ये हादसा स्कूल के दिन हुआ होता तो सोचो क्या होता और क्या गुजरती उन बच्चों पर जो अपना भविष्य बनाने के लिए उन नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये चिंता सिर्फ मेरी है आज की, आज इस धमाके की मैं ही हिला हुआ हूं, डर रहा हूं,
मुझे लगता है मेरे पास सुबह से कम 2 दर्जन लोगों के फ़ोन या मैसेज आए हैं। लोग कह रहे हैं मनीष जी भीड़ में मत जाना, दिल्ली में हालत ख़राब है। लोग कह रहे हैं जी आप पदयात्रा करने लोगों के बीच जाते हो, अभी दिल्ली में मत जाना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एकदम हाथ पे हाथ रख के सोई हुई है, उसको कोई चिंता नहीं है दिल्ली की क्या होगा, आप भीड़ में मत जाना। ये तो लोग मुझसे कह रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि दिल्ली में लोग किस हद तक डर गए आज की इस घटना से। भारतीय जनता पार्टी के नाकारेपन से, बीजेपी की केंद्र सरकार की लापरवाही से और उनकी एकदम जो नींद में सोए हुए हैं वो, उससे दिल्ली के लोगों में आज के धमाके से कितनी दहशत हुई है इसका अंदाजा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। और बात आज की होती तो शायद वन ऑफ घटना होती। दिल्ली के लोगों की चिंता का विषय यह है कि आज जब ये ब्लास्ट हुआ और उस समय जिस समय टीवी पर ये न्यूज़ देख रहे थे लोग, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे थे कि अभी अभी ब्लास्ट हुआ है, उसी समय लोग अखबारों में कल की खबर भी पढ़ रहे थे कि कल शाम भी दिल्ली में खुलेआम फायरिंग हुई है और एक गोली नहीं चली है, 60 राउंड फायरिंग हुई है वेलकम इलाके में, वेलकम कॉलोनी में। वहां पे एक लड़की घायल भी हुई है। मतलब ये हो क्या रहा है? कहीं से कोई आके दिल्ली में ब्लास्ट कर जा रहा है, कहीं से कोई गैंगस्टर आके खुलेआम हवाई फायरिंग करके चला जा रहा है, 60 राउंड फायरिंग करके चला जा रहा है। किसी गैंगस्टर को कोई डर नहीं है, किसी बम प्लांट करने वालों को कोई डर नहीं है। ये हो क्या रहा है दिल्ली में? और ये आज और कल की घटनाएं होती तो भी बड़ी चीज थी कि चलो ठीक है, वन ऑफ इंसिडेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई चूक हुई हो सकती है, कोई एक चूक मान सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर घटनाओं को देखें तो जिस तरह से दिल्ली में एक के बाद एक गैंगस्टर्स का आतंक हुआ है, रंगदारी वसूली के, बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली के जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, लोगों के शोरूम के सामने, लोगों की दुकानों के सामने जिस तरह से फायरिंग हुई है, वो सिर्फ कल की घटना नहीं है। वो दिल्ली में लगभग रोज हो रहा है कि किसी इलाके में किसी दुकानदार को धमकी दी जा रही है, उसकी दुकान के सामने फायरिंग की जा रही है। रोज ये घटना घट रही है दिल्ली में। अभी थोड़े दिन पहले मीडिया में ही हाईलाइट हुआ था किस तरह से नारायण विहार में एक बड़े गैंगस्टर ने खुलेआम धमकी देके एक कार शोरूम के मालिक से पैसे मांगे। उसके ठीक पहले महिपालपुर में हमने देखा कि किस तरह से एक होटल मालिक को धमकी देके एक गैंगस्टर ने किस तरह से वहां फायरिंग की, उसको धमकाया और उससे पैसे मांगे, उससे वसूली के पैसे मांगे। उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से नांगलोई में एक मिठाई की दुकान के सामने इसी तरह की घटना हुई, गैंगस्टर्स ने खुलेआम वहां पर फायरिंग की और लोगों से पैसे मांगे, उस व्यक्ति से, मिठाई के दुकान वाले से वसूली के पैसे मांगे। ये चल क्या रहा है दिल्ली में? केंद्र सरकार को जरा अंदाजा भी है कि उसके जिम्मे क्या है? भारतीय जनता पार्टी को जरा भी आभास है कि दिल्ली के लोगों ने उसको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी हुई है? दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। दिल्ली में पुलिस नहीं संभल रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी दिन रात क्या कर रही है? दिन रात भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के काम रोकने पे लगी हुई है। केवल और केवल इसमें लगी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली जो कर रखी है, इसको कैसे रोक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सारी मेहनत, अपना सारा ज्ञान जो भी उनके पास में है, केवल इस बात पे लगा रहा है कि स्कूल और अस्पताल केजरीवाल जी ने जो ठीक कर दिए हैं उसको कैसे खराब किया जाए, तीर्थ यात्राएं कैसे बंद की जाएं, मोहल्ला क्लिनिक कैसे खराब की जाएं, सड़कें कैसे खराब की जाएं, सीवर कैसे खराब किए जाएं, दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक के पानी कैसे खराब किया जाए लोगों का। भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी हुई है। मैं आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र में थोड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करिए। आपको दिल्ली के लोगों ने पुलिस के जरिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। आपको दिल्ली के लोगों ने पुलिस को संभालने की जिम्मेदारी दी है। अगर आपको कुछ आता है तो पुलिस को संभालिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। आपको अगर पुलिस ठीक करनी आती है, लोगों ने आपको पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का काम ठीक करने के लिए दिया है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना आता है तो काम कीजिए, अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। आप ये एजुकेशन के पीछे, हेल्थ के पीछे, पानी के पीछे, सड़कों के पीछे सारे काम को रोकने में लगे हुए हैं। उस काम पे अपनी टुच्ची राजनीति बंद करिए और आप सकारात्मक काम करिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करिए। दिल्ली के लोग इस वक्त डरे हुए हैं, दहशत है त्योहारों से पहले। शर्म करिए थोड़ी सी और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करिए दिल्ली का। ऐसी घटना ना हो, दिल्ली को आश्वासन दीजिए। आप केवल ये आश्वासन देने में लगे हुए हैं कि हम आपका पानी नहीं आने देंगे त्योहारों पे,
हम केजरीवाल की स्कीम रुकवा देंगे त्योहारों पे। आपका सारा बीजेपी का नेता, आपकी सारी बीजेपी की मशीनरी, आपकी सारी एजेंसियां, सारे इंटेलिजेंस सब इस पे लगा रखा है आपने कि केजरीवाल जी का काम कैसे रुकवाया जाए। मैं कहना चाहता हूं फिर से बीजेपी को कि संभल जाइए, दिल्ली खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है। दिल्ली को गैंगस्टर्स चला रहे हैं, ठीक ऐसे गैंगस्टर्स चला रहे हैं जैसे हम फिल्मों में देखा करते थे कि 1990 में मुंबई में गैंगस्टर्स का राज था, आज दिल्ली में गैंगस्टर्स का राज हो गया है। अगर थोड़ी भी कहीं किसी कोने में शर्म बाकी है तो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे काम करिए, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने पे काम कीजिए। और मैं एक बात यहां दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम देके देख लिया। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं आता है, इनको केवल और केवल तबाह करना आता है, इनको केवल और केवल बर्बाद करना आता है। इनके हिस्से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के काम आया, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर गैंगस्टर्स के हाथों में सौंप रखा है। अगर गलती से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया तो आने वाले समय में ये स्कूलों का भी यही हाल करेंगे जो इन्होंने आज लॉ एंड ऑर्डर का किया है। आने वाले समय में ये बिजली का, पानी का, स्कूलों का, अस्पतालों का, सारी चीज़ों का जो आपको केजरीवाल जी दे रहे हैं, जो केजरीवाल जी की गवर्नेंस की बातें, ये सब पे यही हाल करेंगे जो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का किया है। तो मैं लोगों से भी कहता हूं कि इनके प्रति आगाह रहिए, लेकिन अभी तो त्यौहार हैं, सब लोग डरे हुए हैं। जब मेरे जैसे आदमी को दर्जनों लोग फ़ोन करके, SMS करके कह सकते हैं कि आप घर पे सेफ रहिए, आप बाहर सेफ नहीं है, इस वक्त मार्केट में भीड़ है, मार्केट सेफ नहीं है, मार्केट्स में बड़े घटनाओं की तैयारी कर रखी है, और लोग कह रहे हैं कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कहने पे एकदम आराम से बैठी है, कोई उसको इंटेलिजेंस का काम नहीं करना, कोई उसको लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं करना। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब खतरे में हैं, दिल्ली खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से, उनकी लापरवाही, उनके फेलियर की वजह से खतरे में है। संभल जाएं, संभालने दिल्ली को, नहीं तो बहुत बुरा वक्त आ सकता है। દિલ્હીના સીએમ અતિશીનું મોટું નિવેદન, કહ્યું કે ભાજપાની ગંદી રાજનીતિ દિલ્હીની હવા અને પાણીમાં પ્રદૂષણનું કારણ છે। દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે, આ સાથે જ યમુનામાં પ્રદૂષણનું સ્તર પણ વધી રહ્યું છે। આજે હું દિલ્હીની જનતાને કહેવા માંગુ છું કે દિલ્હીની હવા અને પાણીમાં વધતા પ્રદૂષણનું સાચું કારણ ભાજપની ગંદી રાજનીતિ છે। એક તરફ પંજાબમાં આપ સરકારના પ્રયાસોને કારણે પરાણ સળગાવવાની ઘટનાઓમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારની પોતે જ આ વાત સ્વીકારે છે કે પંજાબમાં અમારી સરકાર બન્યા પછી પરાળ સળગાવવાની ઘટનાઓ ઘટીને અડધી થઈ છે, જ્યારે ભાજપ શાસિત હરિયાણા અને યુપીમાં પરાળ સળગાવવાની ઘટનાઓ વધી છે। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी जब आप में से कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को सीएम आवास दिल्ली की सीएम को नहीं अलॉट करना तो वो उन्हें मुबारक है। वो भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता को चाहे वो घर दे दे। हम दिल्ली वालों की सेवा के लिए आए हैं। हमें घर से, गाड़ी से, बंगले से कोई मतलब नहीं है। हम दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे, हमें सड़क पर रहकर काम करना पड़े हम वहाँ पर करेंगे। अगर इन्हें घर, मुख्यमंत्री आवास दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं देना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं और हम वहीं पर बने रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कितनी गंदी राजनीति कर ले। दिल्ली के अंदर आजकल यमुना पॉल्यूशन के ऊपर बहुत बात हो रही है। जैसे आतिशी जी ने बताया कि बीजेपी के काफ़ी सारे नेता फ़ोटोशूट के लिए आजकल जा रहे हैं, तो वो फ़ोटोशूट कराने जाते हैं, कभी इधर दिखाते हैं, कभी उधर दिखाते हैं। यमुना का जो पॉल्यूशन है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम यमुना को साफ़ कर देंगे, और उसको साफ़ करने के लिए युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट हो गया था। जब काम स्टार्ट हुआ और बीजेपी को लगने लगा कि तो वाकई अगले इलेक्शन से पहले यमुना साफ़ हो जाएगी, तो बीजेपी ने क्या किया, पहले मुझे अरेस्ट किया क्योंकि मैं यमुना क्लीनिंग के लिए अरविंद जी ने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई थी, जल मंत्रालय मुझे दिया था, यमुना को साफ़ करने की स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में फिर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया। कारण यही था कि अगर दिल्ली में यमुना नदी साफ़ हो गई, इन बीजेपी वालों से तो गंगा साफ़ हुई नहीं, पर इनको ये ज़रूर पता था ये दिल्ली साफ़ जरूर कर देंगे। अभी आतिशी जी ने जैसे आपको बताया, दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन है,
उसके अंदर बादशाहपुर ड्रेन गिरती है, वो हरियाणा से आती है। दिल्ली की कोई इंडस्ट्री नहीं है, बादशाहपुर ड्रेन के अंदर सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है, इंडस्ट्री का वेस्ट आता है पूरा का पूरा। वो सारा दिल्ली के अंदर नजफगढ़ ड्रेन को गंदा करते हुए यमुना के अंदर जाता है। दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर दो तरह का वेस्ट है, एक है ह्यूमन वेस्ट, वो इतना खतरनाक नहीं है। जो आपके घरों से जो सीवर के थ्रू जाता है वो इतना खतरनाक नहीं है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा नहीं हो रहा है, या तो यूपी की साइड से आता है, शादरा ड्रेन में आता है जो कि 55 MGD है, दूसरा बादशाहपुर से आता है, तीसरा DD3 से आता है। तीनों मिला के लगभग 150 पौने 200 MGD इंडस्ट्रियल वेस्ट दिल्ली के अंदर आता है, जो बहुत ही खतरनाक वेस्ट है। हमने दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की यमुना के साथ साथ सारी ड्रेन्स को टोटली साफ़ करने का काम स्टार्ट कर दिया है। उसको रुकवाने के लिए ही बीजेपी वालों ने मुझे भी अरेस्ट किया, बाद में अरविंद जी को भी अरेस्ट किया, और यही राजनीति थी कि उन्होंने बाद में, अब ये पूछते हैं कि भाई साहब आपने कहा था यमुना साफ़ क्यों नहीं हुई, कि अच्छा आपसे बताओ कि क्यों नहीं हुई, कहते हमने आपको अरेस्ट कर लिया था इसलिए नहीं हुई। कोई बात नहीं, हमने अरेस्ट कर लिया था, हम करके दिखाएंगे। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आपको ताज्जुब होता होगा कि यार ये झाग जो बनते हैं ये छठ पूजा पे क्यों बनते हैं सारे। छठ पूजा आने वाली है, दिवाली आने वाली है, अचानक पूरे साल आपको टीवी वालों को कहीं नहीं लेके जाता कोई। एक साल पुरानी फोटो देखो, एक साल के बाद अचानक फिर पैदा हो, सारे जो होता है टूरिस्ट पैदा हो जाते हैं, अलग अलग अपने फ़ोटो शूट के लिए चल पड़ते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं बीजेपी वाले, अपने आप से नहीं बनना चाहिए, दो कारण से बनता है। एक, पहला मैंने जो बताया, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हरियाणा से और यूपी से आ रहा है उसके अंदर फॉर्माइट होता है जिसकी वजह से ये झाग बनता है। दूसरा, कालंदी कुंज के ऊपर जो 12 गेट लगे हुए हैं उसको यूपी इरिगेशन चलाता है। सारे बंद कर देते, 2 या 3 खोलते हैं। आप सारे खुलवा दो ना, कल ही खत्म हो जाएंगे झाग। फिर आपको फोटो शूट कैसे कराएंगे? आप लगो उनके पीछे कि सारे गेट खोलो जी, हमें 3 दिन गेट खोल के दिखाओ, फिर झाग बनते नहीं बनते चेक करना उनको जाके। खुद बात पैदा करते हैं और छठ के बाद फिर खत्म भी हो जाएंगे, ये भी देख लेना। छठ खत्म, दिवाली खत्म, ये झाग भी खत्म। तो ये सब ड्रामा करने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर यमुना को भी क्लीन करके दिखाएंगे, जैसा आतिशी जी ने बताया है। पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को भी ख़त्म करेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपको। हम लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है। दिल्ली से बनारस कितनी दूर है जी? 1000 किलोमीटर तो है। आप पिछले 1 साल का, पिछले 2 साल का, पिछले 3 साल का डाटा कंपेयर कर लीजिएगा, दिल्ली का पोल्यूशन और बनारस का पोल्यूशन। दिल्ली का पोल्यूशन बनारस से तो कम ही है। बनारस के लोकल क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। दिल्ली का पोल्यूशन तो बता दिया, सबको पता है कि इतने सारे भट्टे लगा रखे हैं दिल्ली के चारों तरफ, 3000 भट्टे लगा दिए। अरे उसका पोल्यूशन दिल्ली में आएगा नहीं आएगा? अगर 7 पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट दिल्ली के अंदर, थर्मल पावर प्लांट थे, हमने सारे बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी से कहा था मैंने, तब मैं पावर मिनिस्टर था, मैंने सर बंद कर रहा हूँ। कहते कितनी भी महंगी बिजली लेनी पड़े, हम पावर प्लांट दिल्ली में, थर्मल पावर प्लांट नहीं चलाएंगे, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन नहीं होने देंगे। हमने तो बंद कर दिए, इन्होंने क्यों नहीं बंद किए? कहते अगर सारे बंद कर देंगे दिल्ली में पोल्यूशन कैसे होगा? ये सारे गंदी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। पहले कहते हैं गंदगी फैलाएंगे, कहते गंदगी, कहते किसने फैलाई? कहते मैंने फैलाई। हद हो गई, तुम क्यों फैला रहे हो भाई? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अब जैसे झाग का मैंने आपको बताया, इस झाग में ऐसी क्या खास चीज़ है, साल के बाद ही होते हैं। दिवाली आ गई, छठ पूजा आ गई, अब झाग हो गए, अब वो सारे फोटोशूट पे चलेंगे, क्योंकि इन्होंने करना था। इसको पोल्यूशन से इनको कोई लेना देना नहीं, इनको ड्रामा करने से मतलब है। अरविंद केजरीवाल जी का रिजॉल्व है, हम सबका रिजॉल्व है कि हम सारे काम करके दिखाएंगे। ये जितने मर्जी हथकंडे अपना लें, जो मर्जी ये कर लें। उन्होंने जेल के अंदर मुझे भी, अरविंद जी को कितनी यातनाएं दी हैं वो बताते नहीं हैं। मुझे पता है ना, मैं जेल में था। वो 4 महीने जेल के अंदर है, एक आदमी से नहीं मिले, किसी को उनके सेल में नहीं जाने दिया, किसी से बात नहीं करने दी। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ सर, जो जिनको फांसी की सज़ा मिलती है ना, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखते। उनको तो फांसी की सज़ा भी नहीं दी थी। तो ये इतनी गंदी राजनीति पे उतरे हुए हैं। ये जो मर्जी कर ले, जैसा मर्जी कर ले, जितनी मर्जी बड़ी अरेस्ट कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। दिल्ली के अंदर यमुना को भी साफ करा के दिखाएंगे, यमुना को साफ करेंगे, पोल्यूशन खत्म करेंगे, दिल्ली के सारे काम खत्म करके दिखाएंगे। आज सुबह मैं आनंद विहार बस अड्डे गई, क्योंकि आनंद विहार बस अड्डे में कहा जाता है कि उस इलाके में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है।
अगर आप आनंद विहार बस अड्डे पे दिल्ली की बसें देखिए, सारी सीएनजी बसेस और सारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं। दिल्ली में आज एक भी डीजल बस नहीं है। 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट अब दिल्ली में आ गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहां से इंटर स्टेट बसेस दिल्ली आती हैं, जहां पे दिल्ली के बॉर्डर पर अनेकों बस स्टैंड्स हैं, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसेस आती हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस की एक फ्लीट खड़ी कर दी, जहां आज दिल्ली में सीएनजी बसेस की लाइन लगी हुई है, हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? यूपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति करना चाहते हैं। तीसरी बात, ईंट के भट्टे। ईंट के भट्टे लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक भी ईंट का भट्टा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीआर के एरिया में अगर आप जाइएगा तो हरियाणा में, यूपी में 3800 ईंट के भट्टे हैं, जिनसे लगातार दिल्ली का और आसपास के इलाकों का प्रदूषण बढ़ रहा है। जो ईंट के भट्टों से पोल्यूशन आता है वो यूं थोड़ी देखता है कि जी अब दिल्ली का बॉर्डर आ गया, अब यहाँ पे प्रदूषण रुक जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने, यूपी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए इन ईंट के भट्टों का प्रदूषण रोकने के लिए। चौथा, थर्मल पावर प्लांट्स। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सारे थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए, लेकिन यूपी में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करने के लिए एनसीआर के इलाके में 9 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स चलाती। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, सुरक्षा को लेकर आपने पहले ही सवाल खड़े किए हैं, पुलिस को उनके इस्तेमाल का नजर है, तो आज से पहले ब्लास्ट। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहुत स्पष्ट है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड। ये मात्र 3 जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो अपना 99% टाइम लगाते हैं चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, और शायद 1% भी समय वो नहीं लगाते हैं अपने काम करने में, पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। रोज रोज खबरें आती हैं कि गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से दिल्ली वालों की तरफ से अपील करना चाहूंगी कि आप दिल्ली वालों के साथ राजनीति करना छोड़ दीजिए। जो चुनी हुई सरकार के काम है वो आप हम पे छोड़ दीजिए, उसमें आप दखल मत दीजिए। हम वो काम, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हैं, हम सब कुछ करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद लगातार
पूरी स्पीड से दिल्ली में काम हो रहे हैं, लेकिन जो काम आपकी जिम्मेदारी है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको देनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगी कि उस पर भी आप कुछ ध्यान दें। દિલ્હીમાં નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામમોહન નાયડુ કિજરાપુ અને સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ પર તાજેતરના હોક્સ બોમ્બ કોલ્સ પર વાત કરે છે. તેઓ કહે છે કે મંત્રાલય તરફથી અમે જો જરૂરી હોય તેટલી કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવાનું વિચાર્યું છે અને અમે આ પછી નિષ્કર્મ પર પહોંચ્યા છીએ કે બે ક્ષેત્રો જેને આપણે શોધી શક્યા તેવા એરક્રાફ્ટ સુરક્ષા નિયમમાં સુધારો, એકા નિયમમાં ફેરફાર કરી અમે જે વિચાર કરવાના છે તેનો પ્રચાર કરવા માંગીએ છીએ. Because for us, like I said, safety and security is the foremost aspect, and this we follow through the international guidelines itself. And once that protocol is set, then we follow it thoroughly, word by word, whatever rule or whatever protocol that has been set, we follow it thoroughly, each and every point. And as we have seen that we have been getting repeated ones, and most of them are hoax bomb threats. So once this has happened, then we have had multiple meetings. In the last 1 week, I have chaired certain meetings with all the necessary stakeholders within the ministry, and we have our secretary Wallamji here, and DG BCAS, our security regulator Hassanji is also here. And at each and every level, whoever the stakeholders are, we have been calling to the ministry, we have been having multiple meetings. In fact, our BCAS has also been interacting with MHA, Ministry of Home Affairs, also on a continuous basis, because they are also an important stakeholder when it comes to these kind of security threats in the country. So at multiple levels we have been having these meetings, and everyone we have taken in suggestions, opinions of all of them, and from the ministry we have thought of some legislative action also if it is required, which direction should be moved in. And we have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Aircraft security rules is something which deals with the security aspect when it comes to within the aircraft, how do we deal with the security issues, concerns, and there is a strict rules that have been laid out. And we have seen that if you can do a little amendment there, it can specifically strengthen the cause which we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. And with that idea or with that thought process, we are trying to amend the aircraft security rules, which is already there. We feel that there is some betterment that we can do, and with our discussions, we are trying to amend it. And the second one is the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act. This is an act that we already have. This is also commonly known as the Suwaska Act. And there are multiple offences that have already been listed in the Suwaska Act. And one of this was, this is a 1982 Act, and it deals with many offences such as offence at an airport, offence of committing violence on board an aircraft in flight, destruction of damage to air navigation facilities. So these are some of the offences that the Suwaska Act targets. And what we have seen is that while it takes care of the offences when the aircraft is in travel, it's in flight, we see that this, if we want to address these kind of threats that have been happening, or you want to take strict action against the people who are behind this when there is a fake or a hoax threat that they are trying to do, then we have to cover the act under on the ground and at the airport also. So we are trying to make an amendment. Our legal team has worked very thoroughly on this, and we are coming up with an amendment, and then we are taking in, because this has to be a legal change in the act, we need a consultation from other stakeholders, other ministries also. So we are in that process right now, but we are definitely pushing forward to bring a change in the Suwaska Act also, so that it addresses for these kind of offences which happen when the flight is on ground, so that we can take strict action on them, we can make it cognizable offence. So that is one area that we are looking forward to. And when it comes to the offences that have already progressed, so over the last 7 days, over the last 1 week, if you look at the number, then 8 flights have been diverted. And many of the times, because we are keeping the situation dynamic, whenever these kind of threats are happening, we, especially our BCAS team and the ministry team, we are keeping the situation dynamic. We are assessing situation by situation, what kind of threat they are giving, are they mentioning the specific flight or the airport, or what kind of threat they are trying to showcase through their tweet or everything.
on top of that, to efficiently tackle that situation, whatever is required, our BCAS has also been very immediate in trying to efficiently utilize the infrastructure that is there, or if they need to do any more changes in the rules or anything, they are actively pursuing it. And we are keeping, so while we are trying to efficiently tackle this situation through the threats we are receiving, we are also not compromising on the safety and security. This also I want to make it a very priority point, because you might feel that there are these threats happening, but we can't, even though there are hoax threats, we can't take the situation non-seriously. Everything is important for us. Now the life of a passenger is important, the security situation is important, so the protocol is important for us. So we have enhanced the security also. We have enhanced the security at airports. We are doing 10% more checking at the security checkpoints. We have enhanced the CC cameras, whatever needs to be done, so that the airports get monitored more thoroughly. That part also we are doing. While we are doing that, when these kind of threats come for a specific airline or at an airport, how we deal with them also, is there any better way, so that the inconvenience to the passengers which is caused, because the protocol sometimes is very rigid and it offers the passengers or the airlines to follow a strict procedure. When you see that when it keeps happening little repeatedly, then it becomes a little inconvenience for everyone, and which is why we have been talking to the airlines also. BCAS has already met the airlines 3 times, and whatever their opinions are there, we are all discussing with them. The point I'm mentioning that we are keeping meeting everyone on multiple times is that whatever we are deciding, or whatever MHA or we are combinedly deciding, everyone is on the same platform. Nobody is against each other here. We are all combinedly working towards the common goal on how to reduce this thing. Even one plane gets diverted, it's not what we want. Even one plane gets delayed, it's not what we want. Or even one plane gets affected by these kind of fake threats, it's not what we want. So we are trying to assess the situation, and only one thing that I want to make it is, it's a very sensitive situation when it comes to these kind of threats. There is an international procedure through the ICAO guidelines that we have to follow. So we have to monitor that, and we have to take care of this situation. So combinedly, we felt that from the ministry to actively initially to start some kind of process, so that at least for people who are trying to make these kind of or use the air travel medium to have these fake threats going on, there has to be some kind of deterrent. So that deterrent we feel through this legislative action we can bring through it. So aircraft security rules, we are trying to put an amendment there, and the suppression of unlawful activities against safety of civil aviation. This is another act where we want to bring in the amendment. So I feel these two are there, and all the law enforcement agencies, I have mentioned the MHA and also the state law enforcement agencies, because whenever this kind of threat comes and there is a case that needs to be registered, that gets registered at the airport police station. So we are continuously speaking with all the law enforcement agencies also. We are pushing them to speed up the process. Now these are technical in nature. When you talk about the threats on the internet or the social media, there is IP address involved, and that is concerning many other agencies also. All of them have to be combinedly brought into this, and we are ensuring that there has to be a speedy process in terms of investigation in this. So all the players who might be involved in this, we are putting everyone on the same platform and telling them the seriousness of this issue and trying to speed up the process as much as possible. Legislative action, I have mentioned that whatever needs to be done is this. And from our ministry, I want to tell the people of this country that the safety and security of people and convenient travel of the people is always our utmost priority, and we are working towards it for the past 1 week since it has happened. Especially since my coming also, we have been discussing on this, how to enhance the whole system and all, and we are moving in that direction, and I hope that everyone, with the collective efforts of everyone, we are going to see a much better picture in the coming days. So I am hoping it will. Sir, you have said that you are going to make some amendments. Will there be some financial penalty or any jail term for the... No, that is what we are making it a cognizable offence. So based on that amendment, there is going to be a punishment and also fine also. Sir, as you mentioned that there are many threat calls that have been received, are mostly hoax calls.
રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં વાયુ પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે રેડ લાઇટ ઓન ગાડી બંધ જાગૃતતા અભિયાનની શરૂઆત વખતે દિલ્હીના પર્યાવરણ પ્રધાન ગોપાલ રાય કહે છે કે અમે જાણીએ છીએ કે દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે, પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેમ જેમ શિયાળો નજીક આવે છે તેમ તેમ પ્રદૂષણ વધે છે. એ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે ધૂળ અને વાહનો પ્રદૂષણ સિવાય દિલ્હીને બમણું પ્રદૂષણ થાય છે. કમનસીબે હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ધૂળ સળગાવવાની ઘટના વધી રહી છે. યુપીમાં સીએનજી અને ઇલેક્ટ્રિક બસો ચલાવી રહ્યા છે. દિલ્હી સરકાર અને ભાગનું પણ કામ કરી રહી છે. અમે આજે એક મહિના લાંબી રેડ લાઇટ ऑन અને ગાડી બંધ જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કરી રહ્યા છીએ. देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली वालों को दिल्ली के अंदर से जितना प्रदूषण झेलना पड़ता है उससे 2 गुना ज्यादा बाहर से दिल्ली में प्रदूषण आता है. आज हम देख रहे हैं कि सर्दियां ज्यों-ज्यों बढ़ रही हैं, दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के अंदर सर्दियों में डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन के अलावा जो पराली का पोल्यूशन है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. पंजाब में हमारी सरकार बनी 2 साल पहले. 2 साल पहले 2500 अक्टूबर के महीने में 20 तारीख तक 2500 पराली जलने की घटना थी. आज दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसको देखते हुए पंजाब में हमारी सरकार ने काम किया और वहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है. पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटना है उसे रोक लगाइए. कल मैं आनंद विहार गया था. आनंद विहार में देखा हमने कि दिल्ली में हम सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, लेकिन आनंद विहार में हजारों की तादाद में डीजल की बसें अभी भी धुआं उड़ा रही हैं. तो हमारी जो इतनी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे निवेदन है कि प्लीज आप कोऑपरेट करिए, दिल्ली के लोगों के साथ बदला मत लीजिए, प्रदूषण बढ़ाने का काम मत करिए, घटाने में सहयोग करिए. दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर जो अपने हिस्से का काम है उसे तेजी से कर रही है. जैसे डस्ट पोल्यूशन के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है. गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, चौराहों पर हम सब लोग जो गाड़ियां का इंजन बंद नहीं करते हैं उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, उसके लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान हम शुरू कर रहे हैं. इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान का जो मकसद है कि हम सब लोग जब रेड लाइट हो जाए चौराहे पर तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें. प्रति व्यक्ति पर डे लगभग 10 से 15 रेड लाइट क्रॉस करता है. एक रेड लाइट पर 2 मिनट जब हम इंजन चालू रखते हैं तो लगभग पर डे हम आधा घंटा पेट्रोल और डीजल फूंक रहे हैं बेवजह का. इसलिए आज से जो ये कैंपेन है, दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, अपने हिस्से का जो दिल्ली के हिस्से का पोल्यूशन है उसे कम करेंगे और उसके लिए गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी है. सवाल ये है कि कब तक चलेगा, क्या वॉलंटरी है? दूसरा एक आंकड़ा है कि रेड लाइट से ईंधन जलने से कितना प्रदूषण बढ़ता है? देखिए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने इसको लेकर के काफी रिसर्च किया और उसका जो रिसर्च है वो ये कहता है कि अगर सभी लोग दिल्ली वाले अपने रेड लाइट पे अगर इंजन बंद करते हैं तो 15 से 20% जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है. ये अभियान जो आज से जो शुरू हुआ है, ये अभियान जो है अगले 1 महीने तक ये जन जागरूकता अभियान जारी रहेगा. 4 साल से अभियान चल रहा है, इसका कितना लाभ हुआ है? क्या कुछ ऐसी स्टडी आपकी है कि इस अभियान का कुछ लोगों पर असर पड़ा है? देखो, लोगों पे तो इसका असर होता है. जितने लोग अपना आधा घंटा पेट्रोल कम जलाते हैं पर डे, रेड लाइट पे इंजन बंद कर देते हैं, तो आप ये समझो मोटा मोटा कि आधे घंटे का बेवजह जो पेट्रोल बर्निंग होती है वो हर व्यक्ति अपना कम करके और पोल्यूशन कम करने में अपना योगदान दे रहा है. ये 1 महीने चलेगा. एक और सवाल है सर, गांधरबल में टेरर अटैक हुआ है, 7 मजदूरों की हत्या की गई, इस पर क्या कहेंगे सर? जम्मू क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि यमुना को लेकर के सफाई अभियान शुरू हो गया है
हमें ये समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश से ये गंदगी भेजी जा रही है, तो आज से अभियान मोर्चा वहां पर शुरू हो गया है और धूमधाम से छठ पूजा जो है हम लोग मनाएंगे। तो આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર. ફરી મળીશું નવી વિગત સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.